request our guests to take a seat of honor. I, Nilesh Mishra from Department of Commerce would like to welcome to our dignitaries, guests and participants. I, Nilesh Mishra from Department of Commerce would like to welcome to our dignitaries, guests and participants on behalf of Vikram Mahavidyalaya. Today we are gathered here for interview skill development workshop being organized by the Department of Commerce in collaboration with Placement Cell of Vikram Mahavidyalaya. And also we are here to share the news of entering MOU of Vikram Mahavidyalaya with the Cholamandalam Finance Limited Company for purpose of job placement of our students. And for this session, we are having with us HR Mr. Rishikesh Sir from the Cholamandalam Finance Limited Company, our respected Principal Sir Dr. Nilesh Tiwari ji, and Placement Cell Member and Program Coordinator Dr. And for this session, we are having with us HR Mr. Rishikesh Sir from the Cholamandalam Finance Limited Company, our respected Principal Sir Dr. Nilesh Tiwari ji, and Placement Cell Member and Program Coordinator Dr. Krishnan. So, let's welcome our guest, for which I would like to invite Rakshita Pathak to present a bouquet to Rishikesh Sir, HR from the company, as a token of respect and welcome on behalf of Vikram Mahavidyalaya. Huge round of applause, everyone. Now, I would like to invite Shivani to present bouquet to respect to present a bouquet to respected Principal Sir Dr. Nilesh Tiwari ji as a token of respect. Now, I would like to invite Badal Thakur to present bouquet to Arana Shulaman as a token of respect. Thank you, everyone. Now, jumping to the subsequent part of our session, let's start with our primary speech. Forward, I would like to invite respected Principal Sir Dr. Nilesh Tiwari ji to bless and brief to the students for the session. Welcome, sir. A huge round of applause. Bless and brief to the students for the session. Welcome, sir. A huge round of applause. विप्र कॉलेज के प्लेसमेंट सेल के द्वारा आयोजित इस संक्षिप्त गरिमामय कार्यक्रम में चोलामंडलम के HR उनका स्वागत है और अभिनंदन इसलिए कि उन्होंने MOU को एक कार्य के रूप में परिणित किया है। उसके लिए मैं आराधना और उनकी टीम को भी बधाई देना चाहूंगा कि ऐसी कोई कंपनी है जिसमें प्लेसमेंट के नाम पे हम लोगों ने आज MOU किया है। तो एक बार जोरदार तालियों से आप सभी का एक ही लक्ष्य है, एक उद्देश्य लेकर आप लोगों ने इस महाविद्यालय में प्रवेश किया है कि हम अच्छी पढ़ाई लिखाई करें, माता पिता के सपनों को साकार करें और पढ़ाई लिखाई कर जो लक्ष्य का आपने निर्धारण किया है वहां तक आप पहुंच सकें। और महाविद्यालय प्रबंधन भी सतत इसमें आप लोगों को अनसेक्योर्ड लोन। ये अनसेक्योर्ड क्या होता है तो बता सकता है? मैं बताता हूँ। जैसे एक गुपचुप ठेला वाला वो लोन दे रहा है लेकिन उसके पास कोई पेपर ही नहीं है। गुपचुप वाले का कहाँ घर रहता है, कहाँ जमीन का पेपर, क्या रखेगा हमारे पास? तो ये क्या है, हमारे लिए रिस्क है, इसलिए हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा लगाते हैं। इसको बोलते क्या जाता है? अनसेक्योर्ड लोन। मतलब कोई सुरक्षा नहीं है। हम पैसा दिए गुपचुप वाले को, वो दो दिन अपनी रेडी लगाया, अगले दिन भाग गया। कहाँ पकड़ेंगे? हमारे को पेपर ही नहीं होता है। बिजनेस लोन में दो प्रकार का, ठीक है। फिर आपके साथ एक होम लोन होता है। होम लोन तो सभी जानते होंगे। होम लोन क्या होता है? घर खरीदने के लिए
और चोला ये सेगमेंट करती है कि अगर आपके पास जमीन है, कोई कस्टमर के पास जमीन है, जमीन को भी फाइनेंस करके देंगे और साथ में उसको घर बनाने पे भी हम फाइनेंस देते हैं। ये हो गया होम लोन, तीसरा वर्टिकल। चौथा वर्टिकल रहता है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। समझा कोई? लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी मीनिंग से मतलब लोन के बदले वो प्रॉपर्टी वो रखना पड़ता है गिरवी ऐसा। सही बोले आपने। अगर कोई जमीन रख के, कोई घर रख के हम लोन दे रहे हैं तो उसको बोलते हैं लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। ये होता है। और अभी अभी चोला स्टार्ट किए 2 महीने से इन्वेस्टमेंट। लाइक आपने सब देखा होगा ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट, सब जानते होंगे स्टॉक मार्केट में कोई करता भी होगा। अभी हम 2 महीने से वो भी स्टार्ट किए रायपुर में फिलहाल। कस्टमर आते हैं, उनको देते हैं जो भी एक अमाउंट होता है, तो उससे हम उनको प्रॉफिट कमा के देते हैं। क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि कैसे करना है ट्रेडिंग। आपको अगर पैसा दे दूँ, आप किसी में भी लगाएंगे और आपको ये भी नहीं पता कि आपको प्रॉफिट होगा कि लॉस, लेकिन वो हम गारंटी देते हैं आपको कि आप हमको पैसा लगाइए, हम आपको कितना प्रॉफिट है कोई परसेंट नहीं बताते, लेकिन आपको लॉस नहीं होने देंगे या फिर आपका पैसा डूबेगा। ये होता है चोला सिक्योरिटीज का आगे, राइट। और 3 वर्टिकल होते हैं। आप शायद पूछ सकते हैं कि चोला में आप क्या जानते हैं, मतलब कितने सेगमेंट है, तो आप सिर्फ 3 बोलिएगा। सर सेल्स, क्रेडिट, कलेक्शन, ये 3 है। ये अगर आपके फ्रेंड्स बात यहाँ नहीं आए, आप उनको बता सकते हैं। चोला में 3 डिपार्टमेंट होते हैं, लाइक सेल्स जो पूरा सेल्स देखेगा, फाइनेंस का टीम रहेगा, कलेक्शन हो गया। जैसे कोई कस्टमर पूछेंगे कलेक्शन बारे में कौन जानता है, चलो बताइए। कलेक्शन डिपार्टमेंट आप सुन के क्या लगा आपको, क्या होगा? सर कलेक्शन मतलब जैसे जो भी अपने फाइनेंस और मार्केटिंग में किए हुए हमने, तो जिनका भी रिकवर करना है अमाउंट, तो उसमें जब कलेक्ट करेंगे तो वो कलेक्शन का पार्ट होगा। बिल्कुल सही बोला। कलेक्शन वो रहता है कि अगर आपने किसी को दिया कार लोन, राइट, वो किसी वर्ष आपको पेमेंट नहीं दे पाया, तो कलेक्शन टीम क्या करेगी? जैसे 1 महीना आपको चांस देगी, 2 महीना, तीसरे महीने से आपको लिफ्ट दिया जाएगा कि ये कस्टमर आपको पैसा नहीं दे रहा है, आपको इसका पैसा लेके आना है। तो ये हो जाता है कलेक्शन का काम। ठीक, सेल्स का काम समझ गए कि आपको फाइनेंस करवाना है, आपको एक एरिया दे दिया जाएगा। जैसे अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप रायपुर में ये बड़े, अगर आपको रायपुर दे रहा हूँ तो हम आपको बताएंगे कि रायपुर में आपको कहाँ जाना है, कहाँ से लीड आएगा, कहाँ से फाइनेंस मिलेंगे, तो वो हो जाता है। क्रेडिट मतलब उधार नहीं, लेकिन क्रेडिट का क्या समझते हैं मैं बता रहा हूँ। क्रेडिट वो होता है कि अगर आप एक लोन लेने आए हो मेरे पास, तो मैं आपको पेपर चेक करूँगा, आपका क्रेडिट स्कोर पूरा चेक करूँगा कि पहले आपने कहीं लोन लेके कुछ किया तो नहीं है, आपकी फाइल अच्छी है कि नहीं है। ऐसा नहीं कि आपको ऑलरेडी लोन चल रहा है, आपने उसका EMI तक नहीं पटा है, तो वो हो जाए क्रेडिट टीम का काम। अगर आपको लोन चाहिए 15 लाख का, तो और आपको मिल रहा है 12 लाख, तो वो क्रेडिट टीम का काम होता है कि कैसे भी करके इनका मोस्ट हम आपको दें। ये 3 वर्टिकल है। और उसके बाद अगर आप चोला ज्वाइन कर रहे हैं, तो हम जैसे बोलते हैं कि चोला एक ऐसी कंपनी है जो कभी किसी को निकालती नहीं है। जब तक आप कुछ कर नहीं रहे हो, मतलब कंपनी को हार्म नहीं करोगे, तब तक कंपनी आपको निकालेगी नहीं। ना ही कि कंपनी के नाम को आप डुबा रहे हो, जैसे आप कंपनी के नाम डुबाया, कुछ हार्म किए, वही कंपनी उस बेसिस पे चोला निकालती है एम्प्लॉय को। उसमें भी ऐसा नहीं आपको टाइम दिया जाएगा कि आपने ऐसा ऐसा किया है, आपकी गलती है, मानते हो तो आपको 1-2 महीने का मौका भी दिया जाएगा। ओके, और कुछ सर इसमें जैसे रिक्रूटमेंट के लिए आएंगे तो इसमें मार्केटिंग फील्ड का काम नहीं कि ऑफिस वर्क रहेगा कि दोनों आएंगे? जैसे कैंपस ड्राइव होगा अभी, तो उसमें जैसे मैंने बताया 3 वर्टिकल, राइट, सेल्स, क्रेडिट, कलेक्शन। बॉस लोगों को सबसे ज़्यादा प्रेफर होता है सेल्स और कलेक्शन। क्यों? क्योंकि गर्ल्स को हम इधर उधर कहाँ भेजेंगे मार्केट में, राइट, ना आप लोग उतना डेली जा पाओगे कहीं, इसलिए उनका रहता है क्रेडिट का। तो क्रेडिट का एक सिटिंग जॉब है, ऑपरेशन जॉब होगा जो गर्ल्स कर सकते हैं बैठे हुए, राइट। और सेल भी रहता है, आप मार्केट में जा रहे हो, लड़के लोग नहीं जा सकते, तो सेल्स का काम रहता है और कलेक्शन में रहता है, बॉस को प्रेफर करते हैं। और अभी कुछ इसी साल ऐसा हुआ कि हम लोग प्रेफर कर रहे हैं HR से भी गर्ल्स को लाना। लेकिन ऐसा था पहले लाते थे, जैसे कि होता है कि कोई ज्वाइन करता है फिर छोड़ देता है, लेकिन अब फिर प्रेफर कर रहे हैं कि गर्ल्स को भी मौका दिया जाए, और खासकर फ्रेशर को।
और कुछ सवाल? सर आपके मनी का सर पैसा कहाँ से मतलब किस प्रकार से उनको पेमेंट बनता है वो समझ नहीं आता जैसे कि लोन अगर आप दे रहे हो तो कैसे दे रहे हो फॉर एग्जाम्पल चलो आपके घर वाले आ रहे हैं लोन लेने, होम लोन लेने, राइट? आपके पास ज़मीन है तो कोई कस्टमर आपसे पूछ लिया कि आपको लोन किस बेसिस पे ले रहे हो, तो हम लोग क्या देखेंगे? पहले आपकी ज़मीन देखेंगे। आपकी ज़मीन है 2000 स्क्वायर फीट, ठीक है? तो उससे एक वैल्यू होता है 2000 स्क्वायर फीट का एक वैल्यू हम निकालते हैं कि अगर कस्टमर को हम इतना लोन देंगे तो उससे हाफ देंगे ताकि नहीं पटा पाए तो हमको ज़्यादा रिस्क नहीं होगा। और होम लोन का भी रिस्क नहीं रहता है, कोई भी नहीं चाहता उसका घर खिंचाए, तो होम लोन एकदम सिक्योर जॉब रहता है। हर कोई होम लोन लेता है, टाइम टू टाइम पेमेंट करता है। तो हम अपनी ज़मीन को देख के लोन देंगे। ऐसा नहीं कि आपका 2000 स्क्वायर फीट आपकी ज़मीन है और आप हमसे मांग रहे हो 50 लाख, ये पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि हर एक सिटीज़ का रेट अलग है। जैसे जयपुर में अगर 1000 स्क्वायर फीट का रेट चल रहा है टाटी वन को बता पर एग्जाम्पल, लेकिन वही आप देखो कोटा में 1500 स्क्वायर फीट है, मानते हो? उस बेसिस पर हम लोन देते हैं होम लोन। मतलब जो ज़मीन की जो आपकी वैल्यू रहेगी उसका 70% आपको लोन दिया जाएगा। ऐसी लोन अगर प्रॉपर्टी में मॉर्गेज लोन जैसे आपने बोला था उसमें भी वही है। आपकी घर की कीमत है 50 लाख तो हम उसमें 40 to 35% ही लोन देंगे, ये रहता है। सर आप ये बताइए होम लोन के इसमें तो आपने सिक्योर और अनसिक्योर के भी एक बताए थे, तो इसमें आपने एक जन को लोन दे रहे हो क्या कहते हैं ठेले वाले को, तो उसमें आप कैसे रिकवर करेंगे या फिर आप दे रहे हो तो किस बेसिस पे आप दे रहे हो? बट ये बता मैं वही बताया कि सेक्योर अनसिक्योर क्या रहता है। सेक्योर लोन हम देते हैं तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि आपने अपनी ज़मीन का दुकान का पेपर रखा है, आप भाग भी जाएंगे तो आपको दुकान ले सकते हैं, राइट? ये हो गया सेक्योर। अनसेक्योर लोन में कोई पेपर वेरीफाई नहीं होता है। पहले हम पूछेंगे, देखेंगे कि वो ठेला कहाँ लगाता है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं जा रहा हूँ लोन लेने, मैं बोले गुच्चू ठेले वाला हूँ, राइट? तो कंपनी क्या देखेगी मेरा ठेला कहाँ है, मैं कहाँ लगाता हूँ। तो पता चलेगा कि मैं मुकुलपेड़ा में बाजार में लगाता हूँ, तो कंपनी के 2 लोग आएंगे कि कब से लगा रहे हो, तो पूछताछ करेंगे कि हाँ ये सब सही लगा रहे हैं, इसका घर यहाँ पर, तो हम देते हैं। इसलिए तो हम कहते हैं कि वो रिस्क ज़्यादा है। जो अनसेक्योर लोन हम देते हैं उसमें रिस्क ज़्यादा है, इसलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज़्यादा रहता है उसमें। तो सर किस बेसिस पे मतलब कितने परसेंट पे? परसेंट डिपेंड करता है कि आपको कितना चाहिए। लाइक फॉर एग्जाम्पल गुच्चू वाले को कितना चाहिए, अगर देखेगा तो 4000 का एक वो ठेला लेगा अपना, 2000 का वो लेगा, और जो वहाँ का रहता है जैसे अभी आप देख रहे नगर निगम में जो बन रहे हैं उसका रेट है 30 to 35,000, उसका सिर्फ स्टॉल का इंस्टॉल का, तो उस पर हम लोन दे सकते हैं। क्यों? उस पर नगर निगम का। सर जो आप लोग जो बोल रहे हो लोन जो प्रोवाइड करते हैं चोलामंडलम एक ग्रुप से आती है, तो ग्रुप के थ्रू मतलब जिसके पास ये पैसे है वो आप नहीं, वो आप भूल जाइए। पैसा एक मुजफ्फर का एक पार्ट है, राइट? और जैसे आपको विक्टर कॉलेज मेन ब्रांच है, उसका एक ब्रांच और है, राइट? शान के सामने, तो मेन ब्रांच ये हो गया और आपने कई सारे ब्रांचेस खोले, वो वैसा ही है। जो आपको सैलरी भी आएगा वो सी चोलामंडलम का ही दिखाया जाएगा, मुजफ्फर का नहीं। और इसमें ऐसा है कि एक स्टेज के बाद अगर आप कंपनी को 4 साल देते हैं तो आप डायरेक्ट मुजफ्फर के पार्ट हो जाएंगे। वो जब आप ज्वाइन करेंगे तो आप धीरे धीरे समझेंगे कि क्या ग्रेड है, CG4 क्या होता है, CG5 क्या होता है, FG5, MG, ये पूरा ग्रोथ है हमारा, हायरार्की बोलते हैं स्ट्रक्चर। एक ग्राउंड लेवल से एक आदमी एक्टिविटी में चालू होता है और वो सीधा जाके डायरेक्टर पोस्ट पे रहता है। लेकिन जो सफ़र रहता है आसानी से तो मिलेगा नहीं, आपको कोई भी कंपनी को टाइम देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सोच लीजिए आप अगर बिजनेस कर रहे हो, आप किसी को हायर कर रहे हो, आपको फोकट कैसे लोगे सैलरी? आप खुद सोचिए, आप क्या चाहोगे? कम से कम वो मेरे को 20,000 काम दे, वो जाकर मैं उसको 8,000 रुपये सैलरी दूँ ताकि 12,000 मेरे को बचे। सेम फंडा यही करिए। अगर आप काम दे रहे हो तो 20,000 का, तो उसको हर महीना को एक इंसेंटिव भी देगा, सैलरी के पार्ट 8,000 की सैलरी नहीं हो, मेरे को 12,000 काम दिया, सिर्फ 3,000 में उसको इंसेंटिव भी देता हूँ। ये नॉर्मल बता रहा हूँ। हमारे यहाँ परसेंट हिसाब होता है कितने लाख का बिजनेस किया। अब होम लोन किए 1 महीने में, फॉर एग्जाम्पल आपने 16 लाख का बिजनेस दिया, सैलरी तो आपको मिलेगा। उसके बाद जो आपने कहीं घुमा हुआ होगा रायपुर के बाहर
जो आपके एरिया के बाहर, उसका ही पैसा आपको मिलेगा। 16 लाख का आपने बिजनेस किया है तो उसका 1% होता है, तो वो आपको इंसेंटिव के तौर पर मिलेगा। ये रहता है सर मतलब चोलामंडलम से जो लोन के हिसाब से बस चलता है, लोन से ही बस कंपनी चलेगी। हाँ, सब लोन ही हम मेन तो पूरा फाइनेंस कंपनी है ना, हम फाइनेंस दे रहे लोगों को। तो फिर जैसे कार वार में जो खेले उसमें भी लोन, मैंने बताया शुरू से, बताया कमर्शियल व्हीकल ऐसा है, आप इलेक्ट्रिक साइकिल से लेकर क्रेन तक लो, वो पूरे कमर्शियल व्हीकल में आ गए। इसमें सब आते हैं, कार लो, बाइक लो, ट्रैक्टर, ट्रक, क्रेन, सब आएंगे। कमर्शियल व्हीकल पूरा आ गया, इलेक्ट्रिक से लेकर पूरा क्रेन तक, बस सब कमर्शियल व्हीकल में आते हैं। और कुछ कोई और सेगमेंट के बारे में जो आप मतलब जितना भी मैं बताया, जितना हमने तो सबने सुना, आपको याद रहेगा, अगर नहीं भी रहेगा तो जो पूछेगा आप देखिएगा नेट में क्या होता है, पर्सनल लोन क्या होता है, बिजनेस लोन क्या होता है। आप सब पूछ सकते हैं। हाँ, एक सवाल आप लोग जरूर पूछ सकते हैं कि पर्सनल लोन हम किसको देते हैं। सीधा एक ही आंसर रहेगा, सर सैलरी पीपल को। पर्सनल लोन सिर्फ उन्हीं को दिया जाएगा जो सैलरी पर्सन है, जिनकी सैलरी आती है। बिजनेस वाले को नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि बिजनेस लोन अलग हम ऑलरेडी दे रहे हैं। पर्सनल लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग रहेगा, बिजनेस लोन का अलग रहेगा। ये रहता है। सबसे पहला होता है कॉन्फिडेंस। अगर आप मेरे पास आ रहे हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं जा रहा हूँ, लाइक मैं आपके पास आ रहा हूँ, कोई चीज़ का बताने आ रहा हूँ, अब मैं बिल्कुल आपको बता ही नहीं पा रहा हूँ, तो आपके मन में क्या है, अरे इसको तो अपनी कॉलेज में मेरे को बेचने आया, मैं क्यों लूँगा। सेम ऐसी है कि आप जब हमारे तो एकदम कॉन्फिडेंस हो गया, आपको नहीं भी पता है कोई दिक्कत नहीं, जितना पता है उतना बोलना, चुप नहीं रहना। चुप रहने में क्या होता है, हमके मन में आ जाएगा कि ये सामने भी चुप रहेगा, कंपनी में आएगा चुप रहेगा, क्या करें, राइट। कॉन्फिडेंस रहना एकदम, कोई डरना नहीं। क्यों डरना, हम लोग आ रहे पूछ रहे, गलत बोलो चलता है, लेकिन चुप नहीं रहना चाहिए, कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए। सर इसमें जैसे कंपनी हायर कर रही थी, उसमें जो सैलरी बेस पे रखेगी, टारगेट बेस से ले रहे हैं। कंपनी अगर आपको हायर कर रही है, डायरेक्ट कंपनी से हायर करो, ठीक है, क्योंकि हम लोग आ रहे हैं तो कंपनी के ही है। हाँ, तो आप सैलरी में रहोगे, मैं बताया ना आपको, जो सैलरी आएगा वो चोलामंडलम का ही लिखाया जाएगा आपके स्टेटमेंट में। और रहा हमारा टारगेट का, जैसे मंथली सैलरी आप आ रहे हैं, ठीक राइट। आपको जैसे फर्स्ट महीने में आप ज्वाइन किए, पहला महीने आपको कोई टारगेट नहीं है, वो एक बोलते हैं हनीमून पीरियड रहता है, आप आराम से सीखो, बैठो, समझो। क्योंकि एक महीना ऐसा रहता है कि आप आराम से सीख जाएंगे, कम से कम अपने एक प्रोडक्ट को सीख जाएंगे। अभी हम देखो चोलामंडलम इतने सारे कार लोन, व्हीकल लोन, ये सुनिए, आपको एक जो लोन दिया जाएगा आपको वो समझना है। एक महीने, दूसरे महीने फिर होगा कि आपको अपने सीनियर को आपको मार्केट में भेजा जाएगा कि कहाँ जाना है, कहाँ कहाँ घूमोगे तो आपको फायदा होगा, राइट। तीसरे महीने से आपको बताया जाएगा कि ठीक है आप समझ गए हो, आपको ये बिजनेस लाना है, इतना बिजनेस लाना है। फॉर एग्जाम्पल आपको बोला जाएगा आपको 10 लाख का लाना है, राइट। अगर आपने उसे 5 लाख का लाया तो आपको इंसेंटिव किस बेसिस पे मिलेगा, 5 लाख में। एक क्राइटेरिया होता है उसका भी, जैसे कि आप कुछ करेंगे, बिजनेस प्लान लो, आपकी सैलरी में जियो, ऐसा है। और जिस मंथ मान लो टारगेट नहीं होता तो उसकी सैलरी नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं मिलेगी। अब आ रहे हो ना, काम पे जा रहे हो, आप काम पे आ रहे हो, काम पे जा रहे हो। हाँ, इसमें भी 2 केस है। आप कंपनी आए, 10 बजे आए, अटेंडेंस लगाए, अब घर जाके सो गए, शाम को आपका पता नहीं क्या लिखाओगे। आप अपने पे लेके सोचो, अगर आप भी कुछ करोगे तो कुछ तो दिखाने के लायक है ना। हम लोग पहले दिखता है एफर्ट, कौन एफर्ट लगा रहा है, भले उसको टारगेट नहीं हुआ कोई मतलब नहीं, लेकिन इंसान घूम रहा है मार्केट में, क्योंकि हमको पता चल जाता है। क्योंकि आपके जो सीनियर्स रहेंगे वो ऑलरेडी 4 to 5 ईयर्स के रहेंगे, उनको पता है कहाँ पे आया है। एक दिन आप 2 दिन बच जाओगे, 3 दिन, चौथे दिन को पूछ भी लेगा कि मेरा बंदा आता है कि नहीं। टारगेट नहीं करे कोई बात नहीं, आप सैलरी तो मिल रही, लेकिन इंसान जॉब क्यों करता है, पैसे के लिए। आप जितना ज़्यादा अपना मेहनत करोगे, पूरा करोगे, तो आपको इंसेंटिव भी ऐसा मिलेगा। हमारे यहाँ उठाते हैं लोग, कलेक्शन वाले, सेल्स वाले,
मोटा अमाउंट आता है इंसेंटिव का। सैलरी पार्ट को छोड़ करके इंसेंटिव वाली बेस जो जॉब होती है ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि एक्सपेंस अभी तो इतने हैं कि ज़्यादा अच्छा है। तो फिर उसके लिए फिर आपको सैलरी नहीं मिलेगा, उसका भी अच्छा है वो भी, आपको किसी को रिपोर्ट, लेकिन जिस मैंने आपको मान लो कुछ किए नहीं, आपको इंसेंटिव नहीं आया, सैलरी भी नहीं आया, इंसेंटिव आया, कम से कम मैं सैलरी में हो तो आप नहीं किया तो कम से कम आपको ये तो पता है कि महीने का आपका सैलरी आ रहा है, महीने की जो मेरी EMI हो जाएगी। और वैसे अगर इंसेंटिव वाला करोगे आप, सैलरी नहीं चाहिए तो फिर इस महीने इंसेंटिव आ रहा है, अगले महीने नहीं आ रहा है, सैलरी भी नहीं आ रहा है। नहीं सर, मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे जॉब के साथ मिला आपका इंसेंटिव भी मिलता है इस जॉब में, वो ज़्यादा अच्छा होती है। तो मैं तो बताया ना आपको, इसमें भी तो मिल ही रहा है, आपको सैलरी भी मिल रहा है। जनवरी की सैलरी आपको आई 14,000, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मंथ के एंड में आ जाएगी, इस महीने आपने कितना किया अचीव टारगेट, उस हिसाब से आपको इंसेंटिव आ जाएगा 15 दिन के अंदर। वही है, आपको सैलरी भी आ रहा है, इंसेंटिव भी आ रहा है। और प्लस अगर आप रायपुर लोकेशन है, रायपुर के बाहर आपको भेज रहे हैं, तो जो आपका जो लगता है पेट्रोलिंग का बिल जमा करिए, पैसा उसका भी लेगा, आप खाना खाएं आपको उसका पैसा मिलेगा। वो एक क्राइटेरिया होता है, जैसे एक मैनेजर्स का होगा कि वो 1000 तक का खाना खा सकता है, टीम लीडर का होगा कि वो 800 तक खा सकता है, टीम लीडर के जो नीचे एग्जीक्यूटिव रहता है उसका रहता है कि एक दिन में 500। आप तो बहुत है, कितना खा लोगे? सही बात है, एक लंच 500 कितना खा लोगे? और कुछ क्वेश्चन? कोई बॉन्ड होगा क्या इसमें? नो नो, कोई बॉन्ड नहीं। ये फिर 1 महीने में आपको नहीं करना है, नहीं वो रहता है, वो आप अधिकतर शोरूम में देखेंगे कि अपने कार शोरूम में आपके कोई दोस्त होंगे जैसे जो कार शोरूम में जॉब कर रहे हैं, जैसे मेरे फ्रेंड्स हैं, वो लोग ऐसा करते हैं, वो 5 गाड़ी बेचते हैं 2 महीने नहीं बेचे, तीसरे महीने निकाल दिया जाएगा। जैसे कि मैंने बताया था मैं कि लॉकडाउन में मैंने किसी को निकाला, आपने भी मुझे बोला था कि मैं सुनो चलो क्यों निकालती नहीं, किसी को निकालेंगे 1 महीना नहीं करोगे तो तीसरे महीना तो करोगे। अपनी मर्जी से नहीं करना है, मर्जी से हाँ? अपनी मर्जी से नहीं करना है। मान लो उसको लग रहा है जैसे मान लो बहुत बर्डन है और इस जॉब में है और नहीं करना है, बर्डन है, निकलना है, तो आप तो भी आपको 1 महीने नोटिस पीरियड तो देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कंपनी जब आपको आपको जानती नहीं लेकिन फिर भी आपको मौका दे रही जॉब का, तो कंपनी ये भी चाहेगी कि अगर 3 महीने करके 4था महीना छोड़ रहे हो तो 1 महीना हमको दो, तब तक कोई हमको दूसरा नहीं मिलता है कुछ, राइट? मतलब जैसे आप 3 महीना जॉब किए, आपको लग रहा बहुत प्रेशर है, मैं नहीं कर पाऊंगी, तो आप कहाँ पे आएंगे? सीधा HR के पास, मेरे पास ही आएंगे आप, क्योंकि हायर मैं नहीं आपको किया, तो मैं पूछूंगा, सोल्यूशन बताऊंगा, सोल्यूशन के बाद अगर आप छोड़ना चाहते हो तो बोलूँगा ठीक है, आप 15 दिन का या 30 दिन का नोटिस पीरियड दो, उसका भी आपको पैसा मिलेगा। लेकिन उसका पैसा कब मिलेगा? जैसे आपने 15 दिन का नोटिस पीरियड किया, जैसे 45 दिन होता है आपको फुल एंड फाइनल सेटलमेंट आपको मिल जाएगा, आप छोड़ सकते हैं सर। ऐसा कोई बॉन्ड नहीं है कि आपको इतना पे करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं, आपकी मर्जी है, आप आगे अपनी मर्जी से जाओगे करोगे। जैसे कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप क्या सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं? देखिए इन्वेस्टमेंट करता है मतलब उसका एक अलग पार्ट है, जैसे एक टीम बनी है, राइट? जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आ रहा हूँ आपके पास, तो मैं सेल्स पर्सन हूँ 16 का, मैं आपके पास आया, पर ठीक है जाइए, तो मैं आपको बोलूँगा कि सर मैं 16 से आया हूँ, हमारी कंपनी इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग प्रोवाइड करती है, तो आपका सवाल क्या रहेगा? ट्रेडिंग तो मैं भी करता हूँ, मेरे को तो लॉस हो जाता है, राइट? तो मेरा जवाब क्या रहेगा उसमें? सर आपको लॉस होता है, मैं लॉस नहीं दूँगा, इसलिए तो मैं आया हूँ, तभी तो मैं आपको कमीशन चार्ज करूँगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने मेरे को 20,000 रुपये दिया है, अगर मैं आपको प्रॉफिट उसका 2,000 करता हूँ तो उसका 10% मैं लूँगा, क्यों? आपको फिर भी 1,800 रुपये प्रॉफिट हो रहा है। अगर मैं रिस्क ले रहा हूँ, आपको पैसा लेके आपको थोड़ा सा कमीशन खाएंगे, तभी तो सैलरी ये रहता है। मतलब एक रिस्क, आप जो रिस्क ले रहे हो अपने से, आपको रिस्क है कि मेरा पैसा डूबेगा, क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ एक ही ट्रेडिंग का पता होगा, TCS का, लेकिन जो मेरा एम्प्लॉई है उसको क्या हर एक कंपनी का पता है, अशोक लेलैंड TCS, मतलब हर एक कंपनी को पता है कि कौन सा मार्केट कब उठेगा कब नहीं उठेगा, तो वो आपको पैसा को खेलेगा, वो रिस्क लेगा थोड़ा पैसा, लेकिन आपको पैसा डूबने नहीं देगा। ये है इसका खेल। हम आपको जैसे आपने अपने को पैसा दिए, आप थ्रू चेक पेमेंट ही करेंगे, तो उसका एक एग्रीमेंट होता है, 16 कंपनी एक एग्रीमेंट आपको पूरा बना के देगी, जो होता है नोटरी अपन कराते हैं उसमें पूरा रहता है,
और एक ऐप देंगे आपको, जैसे आप हमारा जुड़ते हो तो आपके मोबाइल में आप मोबाइल चलाते हैं एंड्रॉइड, आपका बैंक अकाउंट आपको दिख जाता है कितना आया, पेटीएम में पूरा हिस्ट्री दिख जाता है, फोन पे कर कितना आ रहा है कितना जा रहा है। सेम ऐसे जोला आपको एक एप्लीकेशन प्रोवाइड करेगा, उसमें आप देख सकते हो कि हम कैसे आपके पैसे को खेल रहे हैं, कहाँ कहाँ का पैसा जमा हो रहा है, कैसे आपको प्रॉफिट बढ़ रहा है लॉस हो रहा है, वो पूरा आप देख सकते हो। ये रहता है सिक्योरिटी। आपके पास एग्रीमेंट भी रहेगा, पूरा ऐप में आपको दिखेगा कि हम कैसे करते हैं, जो हमारे एम्प्लॉय है वो क्या कर रहे हो आपको बताएंगे। हर 2 घंटे में आपको फोन आएगा, सर ऐसा हो रहा है, मैं इसलिए कर रहा हूँ, आपको इतना प्रॉफिट मैं और लेके जा रहा हूँ। जब तक आप नहीं बोलोगे वो अपने दिमाग में कुछ नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि वो बैठा है आपको प्रॉफिट कमाने कितना ही कि लॉस में, ये बैठे हैं। और कुछ जैसे क्या पूछ सकते हैं आप? सर जैसे शेयर मार्केट में लगाया था तो हमको किसी आपको पैसे दे देंगे कि हम जैसे किसी कंपनी में लगा रहे हैं तो उसकी प्रॉफिट में बढ़ेगा, प्रॉफिट में। आप मेरे पास फाइनेंस चोला में हो, राइट, मैं आपके पास आया तो हम आपको बताएंगे कि उसका प्रोसेस क्या रहता है। आपके अकाउंट डीमैट अकाउंट सुना होगा आपने, डीमैट में आप जानते हो डीमैट अकाउंट होता है, उसमें आपको रखिएगा पूरा। तो एक डीमैट अकाउंट आपको खोलेंगे, लाइक जैसे एक्सिस वाले डीमैट कराते हैं, जैसे तो हमारे एक अलग आता है, हम आपको उसमें अकाउंट खुला के देंगे। इसने बोला कि आपके फ़ोन में रहेगा पूरा, आप अपने फ़ोन में पूरा चीज़ देख सकते हो कि मेरा कहाँ लोग प्रॉफिट लेके जा रहे हैं, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितने रेंज हो रहा है, आप पूरा देख सकते हो अपने मोबाइल में। तो आप उस कंपनी के अकॉर्डिंग प्रॉफिट देंगे ना? हाँ, जैसे अभी मेरे को पता है कि मार्केट अभी उठने वाला है, इसमें तो मैं जैसे आपने 2000 रुपये मेरे को दिया, मैं 500 से इसमें मेरा 200 का, इसमें मेरा 100 का है, क्योंकि आपको तो नॉलेज नहीं है, वो नॉलेज सेल्स वाले को है, वो सेल्स वाले को समझा भी नहीं सकता। क्यों? वो पूरा 2000 का हिसाब देगा, अगर वो 10 उसमें लगाया है शेयर मार्केट में, आपको कैसे पता चलेगा? और जितना देर आपको समझाने लगेगा उसमें तो उठ के बैठ भी गया होगा, इसलिए आपको मुझे पता है तो इसमें प्रॉफिट इतना हो रहा है तब उनको बताइए, लेकिन फिर ये भी बोलेगा सर लेकिन इसका रिस्क मैं नहीं लूँगा, मैं यहाँ पे इसलिए बैठा हूँ, मैं आपका रिस्क कम करने के लिए और आपको प्रॉफिट देने के लिए। लेकिन आप अगर अपने से बोल रहे हो कि आप इसमें लगाओ तो आप जान सकते हो, या तो आपको बोलेगा तो सर आप एक पर्सनल अपना बुक करिए उसमें लगाइए। उसमें आप क्या करेंगे फिर? अगर मेरा डिफरेंट अकाउंट है, आपका डिफरेंट अकाउंट है, ठीक है, उसमें एम्प्लॉय आपका रिलेशन अगर अच्छा होगा, जैसे आपका अच्छा है तो वो आपको गाइड करेगा, लेकिन कोई भी बिना पैसे के क्यों गाइड करेगा? आपने ऑलरेडी उसको दे के रखा है 20,000 रुपये, आपने ऑलरेडी उसको दे के रखा है, वो आपको उसमें प्रॉफिट करा के दे रहा है, ठीक। लेकिन आप बोलोगे कि मेरे को पर्सनल कराओ, तो कहाँ से कराएगा, क्यों कराएगा? हाँ, थोड़ा आइडिया दे सकते हैं, लेकिन ऐसा पूरा नहीं करा के देगा, वो रिस्क गारंटी नहीं देगा। पर्सनल करोगे तो रिस्क आपका है। गाइड थोड़ा कर देगा, बता देगा, लेकिन उतना भी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसको पैसा चाहिए, उसको पैसा किस बात का मिल रहा है? सैलरी, और जो आपका वो लगा रहा है तो उसको मिलेगा आपको कमीशन, वो अलग से क्यों करेगा? कई लोग होते हैं जो अच्छा सोचेगा, आपको बता देंगे, तो सिर्फ पैसा कमाना चाहता है नहीं बताएगा। अगर वो आपको बता देगा तो उसका बिजनेस चौपट हो गया। और कुछ सवाल, कुछ भी मतलब जो आपको मन में छोटा कुछ भी। कुछ भी सवाल है छोटा मोटा, क्या कंपनी के बारे में, कंपनी से रिलेटेड या इंटरव्यू से रिलेटेड, किसी आप पूछ सकते हैं, बहुत टाइम है अपने पास। चलिए मैं पूछता हूँ। सर जैसे इंटरव्यू में हम लोग पास हो गए, हमको जॉब मतलब मिल गया, और हमारे पेपर के पहले ही इंटरव्यू होगा शायद तक। ये अभी हाँ, तो अगर हम इंटरव्यू में पास हो जा रहे हैं और उसके बाद फाइनल पेपर में अगर हम 1-2 नंबर से थोड़ा पीछे रह गए तो जॉब रहेगा या नहीं रहेगा? वाला प्रश्न है तेरा। फेल हो गया तो क्या होगा? जॉब तो रहेगी, इसके भी बता रहा हूँ। यस सर, जॉब रहेगी। आप कहाँ से बीकॉम करेंगे, बीसीए कर रहे हैं? बीकॉम बीकॉम कर लो, बीकॉम फेस सप्ली आता है।
मतलब फेल नहीं हुए हो, आपके पास 1 साल है पेपर देने का, आपके पास 2 साल का तो एग्जाम होगा, सर्टिफिकेट होगा ना, ऑनलाइन निकलता है, और 3rd ईयर में भी होगा सप्ली वाला, जमा तो करोगे, जमा करोगे ना? यस। आपको पता है कि हाँ चल फेल नहीं हुआ, सप्ली वाला है, वो देगा अगले साल। लेकिन अच्छे पढ़ता हूँ ठीक है। नहीं सर मैं पास हूँ, पता है मेरे। चलो मैं पूछ रहा हूँ कि आप जैसे आ रहे हो तो कैसे आएंगे, कोई भी एक, अगर आप इंटरव्यू पे आ रहे हो तो कैसे आओगे आप? फॉर्मल में। लेकिन ऐसा करना कि जो फॉर्मल है लाइट कलर के ऊपर नीचे डार्क, अच्छा लगता है, वाइट ऊपर पहनेंगे अच्छा लगता है, वो सब बहुत एंगल बोल, ना कि ब्लैक शर्ट ब्राउन शर्ट चटनी चटनी खाता है ग्रीन डॉट डॉट हो वैसा नहीं, क्योंकि आप आ रहे हो इंटरव्यू पे आ रहे हो तो अच्छा रहेगा, प्लेन वाइट शर्ट हो, प्लेन कोई भी शर्ट हो गया, फॉर्मल शूज, ऐसा नहीं कि आप फॉर्मल पहन नीचे आप स्पोर्ट्स शूज पहन के आ गए, अच्छा लगता है, वो देखने में अच्छा लगता है सामने वाले को, क्या आता है कि हाँ किसी को है नीड है, मतलब ये सीरियस बंदा है, इस टाइप का लगता है ये। दूसरा कॉन्फिडेंट हो गया आना, एकदम चिल हो गया आना, हाँ ठीक है जो पूछेंगे मैं बता दूंगा सवाल, गलत बताऊंगा लेकिन बताऊंगा आ जाऊंगा से, अब मैं चेहरे पे स्माइल लगना हमारे सामने वाला भी हंस देगा देख के, अरे यार का हंस रहा है देख के, चल उस पर से और अंदर भी कॉमेडी भी कर देगा तो भी आप हंसना, अच्छा लगता है। दूसरा ये, तीसरा ये रहता है कि कभी निराश मत होना, जैसे मान लो कि अगर हम आ रहे हैं, अगर कोई कैंपस में सिलेक्ट हो रहा है या कोई वो मत लेना, क्यों? क्योंकि 3 महीने बाद फिर आएंगे, कोई दूसरे वर्टिकल में आएगा, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं हूँ, अगर मैं आज रिजेक्ट हो गया होम लोन में, 3 महीने बाद फिर तो आएगा पर्सनल लोन में, उसमें देंगे, ये रहता है। और कुछ सवाल? और यही बात अपने फ्रेंड्स को बताइएगा, जो जो मैं पता है, जो आज यहाँ पे नहीं है, जिसका उस दिन आ सकते हैं, मैं थोड़ा गाइड कर देगा उनको कि चोला क्या है, क्या करती है और कैसे करना है, बस ठीक। यस। और कुछ छोटा मोटा पूछ सकते हो आप अभी? थैंक यू। जैसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं तो अपना आई कांटेक्ट कैसे होना चाहिए उनको जवाब देने में? आई कांटेक्ट अपना रहना चाहिए, मतलब फेस टू फेस, अगर आपको आप देखिएगा नहीं, इधर देख के बात नहीं करना, देखना बस, हाँ आई कांटेक्ट। और वैसे भी आपके इंटरव्यू आते हैं वो जानते हैं कि हम कॉलेज कुछ नहीं करेंगे, आपका नाम और कौन सी ईयर में हो, क्या पढ़ रहे हो, बस फैमिली मेम्बर्स में कितने हैं, जॉब क्यों करना चाहते हैं, कोई यही 4 पूछेंगे। 5वां आप कर सकते हो कि नहीं, आपको सही बोलना, आपकी कोशिश पूरी करेंगे। थैंक यू। Thank you so much, sir, for bringing this student with the company's interview taking strategies. So with this session, I want to know that interview skill has 4 concrete pillars. First one is your knowledge. Knowledge मतलब अभी आप लोग ग्रेजुएट स्टूडेंट है तो डिग्री हाथ में है कि नहीं है? अरे जोर से बोलो। पास हो रहे हो ना फर्स्ट डिवीजन से। सेकेंड अपीयरेंस, डिसेंट तो है हम, है कि नहीं? ब्रह्मा विद्यालय के सभी स्टूडेंट्स डिसेंट बस है ना? थर्ड इज योर कॉन्फिडेंस, हर जगह हम अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि नहीं? रोज न्यूज में आ रहे हैं, पता है आपको? नहीं पता, पेपर ही नहीं पढ़ते अपन। एंड लास्ट इज योर क्विक लॉजिकल रीजनिंग कैपेबिलिटी, ठीक है? तुरंत आप में जवाब देने की क्षमता, सोच समझ के, ठीक है? लड़ना भिड़ना नहीं है अपने को। यस। अपना नॉलेज अपने पास है और उनका नॉलेज उनके पास है, यू हैव टू ओबे देम, ठीक? सो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे अभी जो करंट ईयर के ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स हैं सभी एलिजिबल इंटरव्यू के लिए और कंक्रीट कैंडिडेचर अपना प्रेजेंट कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगी कि आप अपने आप को गेट प्रिपेयर्ड योरसेल्फ फॉर द इंटरव्यू एंड क्रेक दिस जॉब प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी एट योर बेस्ट, ऑल द बेस्ट। सो इट्स अ कंक्लूडिंग टाइम ऑफ फर्स्ट सेशन फॉर व्हिच आई वुड लाइक टू invite Dr. Aradhana Shukla ma'am, Assistant Professor, Placement Cell Member, as well as our
सेशन सभी के लिए यूजफुल रहा? यस मैडम। वेरी गुड। सबसे पहली बात तो आप लोग बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली हैं कि जो इंटरव्यू लेने वाले हैं वो खुद आपको ट्रेनिंग देने आए हैं। आपको पता है इसलिए जी हमारे संस्था में आए और मुझसे मुलाकात की है और बोली कि मैम हम लोग जॉब प्लेसमेंट में आना चाहते हैं। इनकी हेल्प भी साथ में थी, तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि हमारे आगे परसुइंग जो स्टूडेंट है फाइनल ईयर के, वो फ्रेशर हैं और उनके पास नॉलेज नहीं है, तो प्लीज़ आप एक दिन आकर उनको वर्कशॉप दे दीजिए। तो उनके जोरदार तालियां। दूसरी बात, आज का जो सेशन है वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा। उसमें मैं वॉच कर रही थी किस प्रकार के प्रश्न आप लोग सर से कर रहे हैं। प्लीज तो किस हाँ वरुण साहू। ओके, वरुण साहू। मैक्सिमम क्वेश्चन वरुण साहू ने किया। टेक अ सीट। जब हम कहीं पे इंटरव्यू देने आते हैं तो सबसे पहले डायरेक्ट करता है आपका एक्सटर्नल पर्सनालिटी, बाह्य व्यक्तित्व। हमारे कॉमर्स के विद्यार्थी पढ़ते हैं बीकॉम 1 में कम्युनिकेशन स्किल, और उसका 4th यूनिट का सेकंड चैप्टर है इंटरव्यू स्किल डेवलपमेंट। Am I right? यस मैम। वरुण साहू, आपके क्वेश्चन बहुत अच्छे थे बेटा, लेकिन बॉडी लैंग्वेज क्या थी? सर, यस, ही इज योर इंटरव्यूअर, नॉट योर फ्रेंड बेटा। जब आप इंटरव्यू देने आते हैं तो आपको बॉडी लैंग्वेज एक पोलाइट वे पे होना चाहिए। वो इंटरव्यू लेंगे, आप उसको फेस करेंगे, आप रजिस्टर्ड है ग्रुप में, मैंने आपका नाम देखा है। टोटल 45 स्टूडेंट हमारे इंस्टीट्यूशन से रजिस्टर्ड है। गूगल लिंक हम पिछले 10 दिन से अपलोड कर रहे हैं ग्रुप में, मे बी आप आएंगे सैटरडे। तो सबसे पहले आपको अपने एक्सटर्नल पर्सनालिटी को भी देखना है। क्लॉथ वेयरिंग नॉलेज सर ने आपको बताया, लेकिन आपको प्रेजेंट करना है बॉडी लैंग्वेज से। दूसरी बात, चोलामंडलम कंपनी बेस्ट फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी है। मैं 2005-6 की बात कर रही हूँ। मोर मॉनेटरी रिसेशन ग्लोबल लेवल पे था, लेकिन एकमात्र आपकी कंपनी ने सर जो छठी नहीं किया था, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। दूसरा, आफ्टर कोविड वी शेप पे हमारा मॉनेटरी रिसेशन आया था, हम 0 पे जाके फिर बूम किए थे। ये इंडियन इकोनॉमी और ग्लोबल इकोनॉमी के लिए एक बहुत ही बड़ा सिंबल बना था हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था। और आपको बता दूं कि जो वी शेप से हम ऊपर आए आफ्टर कोविड, तो वो टर्सरी सेक्टर था। 3 सेक्टर्स होते हैं, आपको पता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी ऑल्सो। तृतीय क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जो सेवा के क्षेत्रों को बिलोंग करता है, और सेवा क्षेत्रों में 3 मेन सेगमेंट होते हैं जो एम्प्लॉयमेंट को देते हैं। फर्स्ट, हॉस्पिटल, होटल का हम हॉस्पिटल ज्यादा बोल रहे हैं। सेकेंड, होटल एरिया, एंड थर्ड, फाइनेंस एंड बैंकिंग एरिया। बैंकिंग को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, शेड्यूल्ड बैंक एंड नॉन शेड्यूल्ड बैंक। और बैंक को भी हम बोलते हैं नॉन बैंकिंग फंक्शंस। तो आपको बता दूं, चोलामंडलम कंपनी विश्व में द्वितीय रैंक प्राप्त किया हुआ एक ऐसा गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान है जो सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है। समझ आ रहा है आप लोग को चोलामंडलम कंपनी क्या है? और आप लोग लकी हैं कि वो कंपनी आपके यहाँ अगर आपको जॉब प्लेस कर रही है। वी आर सो लकी। सर ने तो बहुत ही ब्रीफिंग में अपने बारे में बताया, लेकिन मैं आपको बता दूं, चोलामंडलम एक गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान है जिसमें 80% प्राइवेट सेक्टर इनसे लोन लेता है। बिजनेस का सबसे ज्यादा ट्रेडिंग 65% चोलामंडलम से लोने पर है। अभी क्या दिव्यांश तिवारी बेटे तेरे क्वेश्चन थे कि वो ठेला वाला भैया अनसिक्योर्ड लोन लेता है तो आप रिकवरी कैसे करेंगे? आपका क्वेश्चन था? अनसिक्योर्ड लोन देने की हिम्मत वही कंपनी कर सकता है जिसके पीछे फाइनेंस का ह्यूज बैलेंस हो। कॉमर्स वाले विद्यार्थी जानते हो, थोड़ा बहुत साइंस वाले जानते हैं। चेक शर्ट बेटा क्या नाम है? कॉर्नर, ध्यान से सुनो, 10 मिनट का सेशन। साइंस वाले भी जानते हैं। अनसिक्योर्ड लोन मतलब ऐसा लोन जिसके पीछे कोई
चाहूँगी। मैं एम रघुराजन जी का एक सेशन में अटेंड किया था, उसमें उन्होंने बताया कि पिछले 10 साल से भारत में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। ठीक, हम सब तख्ते लेकर सरकार के पास हड़ताल करते हैं, बेरोजगारी आपको बता दें परिदृश्य बदल गया। रोजगार उसी को प्राप्त होगा जिसके पास डिग्री के साथ स्किल होगी। सम्राट अकबर के समय बाजार का लैंग्वेज था फारसी, तो हम ब्राह्मणों ने भी संस्कृत के साथ फारसी लैंग्वेज सीखा था। मार्केट में अब 2 लैंग्वेज चल रहा है, एक इंग्लिश, दूसरा कंप्यूटर स्किल। इसका डेवलप करिए तो ही आपको रोजगार प्राप्त होगा। तो हमको स्किल भी डेवलप करना है। हमारे दरवाजे पे ऐसे ही जॉब बेस्ड होने के लिए सर आ गए हैं। मोस्ट वेलकम करिए और लकी समझिए अपने आप को, और आशा है कि आप सबको इसका फायदा मिलेगा। नेक्स्ट शनिवार सर ने डिसाइड किया हुआ है इंटरव्यू लेने के लिए, इनकी पूरी टीम आएगी, उनके लीड आएंगे। आप लोग वेल ड्रेसअप होकर इंटरव्यू दें। और मैं ऋषिकेश जी का हृदय से धन्यवाद ज्ञापन देना चाहूँगी कि उन्होंने मेरे निवेदन को स्वीकार किया। मैं प्राचार्य महोदय का आभार देना चाहूँगी कि वो हमें समय समय पर ऐसे नए नए कार्यक्रम करने के प्रोत्साहित करते रहते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी अपने प्लेसमेंट सेल के समस्त सदस्यों का। मैं आभारी हूँ निधि मैडम, स्पॉन्सर हिमांशु, अंकित और मेरे छात्र जो मुझे इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग दिए, और समस्त जनों का जिन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मुझे सहयोग दिया। धन्यवाद। Thank you everyone. Now we are about to close down this session. आपको इंटरव्यू से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट जिन्होंने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है, वर्कशॉप का रजिस्टर्ड लिंक हमने ग्रुप में डाला था फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए। तो जो रजिस्टर्ड है और जिन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है, उसमें आपको पूरी डिटेल्स, आपको टाइमिंग, डेट, पर्टिकुलर आपको जो भी रिक्वायरमेंट्स रहेगी उसमें शेयर कर दिया जाएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन।